رحمان ڈکیت نہیں بلکہ کوئی اور تھا کہ جس نے اس دور میں صرف لیاری نہیں، کراچی نہیں، ایون کافی حد تک پورے پاکستان کو ہلا کر رکھا ہوا تھا۔ اس انسان کا کسی خاص علاقے یا محلے پر نہیں بلکہ پورے کراچی پر سکہ چلا کرتا تھا۔ دوستو، جب ایک طرف بالی ووڈ کی نئی فلم دھرندر کی وجہ سے انڈیا میں ہر طرف رحمان ڈکیت کی چرچائیں شروع ہوئیں، تبھی دوسری طرف پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے میڈیا پر آ کر یا پھر الگ الگ سوشل میڈیا کے کامنٹس باکس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو رحمان ڈکیت ہے، اس کی یہ ہائپ اور اس کی یہ جتنی بھی چرچائیں ہو رہی ہیں، یہ تو بالی ووڈ کی اس نئی فلم کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ورنہ وہ تو کوئی اور ہی ہوا کرتا تھا کہ جو کراچی کی اس بڑی کرائم کی دنیا کا اکیلا مالک ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی تھا کہ جس کے صرف ایک اشارہ کرنے پر کراچی جیسا بڑا شہر اگلے چند منٹس کے اندر بند ہو جاتا تھا۔ یہ انسان جب بھی تقریر کرتا اور مائک پر کھڑا ہوتا تو پل بھر کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ پاکستان کے پورے ہی اتہاس میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر واقعی کوئی زبردست تقریر کرنے والا پیدا ہوا تھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی انسان تھا۔ خوف کا عالم یہ تھا کہ چاہے میڈیا ہو، پولیس ہو یا ایڈمنسٹریشن سے جڑا ہوا کوئی اور بندہ ہو، ہر کوئی اس انسان کے بارے میں کچھ بھی بولنے یا لکھنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا۔ 8 سے 20-25 سال پہلے اگر آپ لوگ کراچی شہر میں داخل ہوتے تو آپ کو ہر دکان، ہر گھر پر اسی انسان کی تصویر نظر آتی۔ اس دور میں چاہے پاکستان کی آرمی ہو، پولیس ہو یا باقی چھوٹے بڑے گینگز ہوں، وہ سبھی اس انسان کے خلاف مل کر لڑ رہے تھے۔ اور تو اور دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ رحمان ڈکیت اور اس کا گروپ یا اس طرح کے جتنے بھی گینگز تھے کہ جن کا لیاری میں رائز ہوا تھا، ان کو مضبوط ہی اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ ان سب کے ذریعے سے اس انسان اور اس انسان کے طاقتور گروپ اور اس کی پارٹی سے نپٹا جا سکے۔ مشہور ایس ایس پی چودھری اسلم کے جن کو دھرندر مووی میں آپ لوگوں نے رحمان ڈکیت سے ٹکراتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے کریئر کا بھی زیادہ تر حصہ جس ایک گروپ یا جس پارٹی اور جس پارٹی کے لوگوں سے لڑتے اور ٹکراتے ہوئے گزرا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی انسان اور اس انسان کی پارٹی ہوا کرتی تھی۔ دراصل اب تک تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں الطاف حسین کی اور ان کی اس پارٹی ایم کیو ایم کی کہ جو کبھی کراچی کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ کہانی کا آغاز 1947 کے انڈیا پاکستان کے اس بٹوارے سے ہوتا ہے کہ جب دونوں ہی طرف کے لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار، اپنا شہر سب کچھ چھوڑ کر دوسری طرف جانا پڑا۔ بٹوارے کے وقت انڈیا سے پاکستان جانے والے جو مسلمان تھے ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، مگر خاص بات یہ تھی کہ یہ جتنے بھی مسلمان پاکستان کی طرف گئے تھے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا جو پہلا اور نیا ٹھکانہ بنا تھا وہ کراچی شہر تھا کہ جو اس دور میں پاکستان کی راجدھانی ہوا کرتا تھا۔ اربن سندھ کی بات کریں تو 1947 میں وہاں پر انڈیا سے آنے والے لگ بھگ 33 لاکھ لوگ مقیم ہو چکے تھے۔ اور ہاں، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ انڈیا سے آنے والے تمام مسلمانوں کو پاکستان میں مہاجر کہا جاتا تھا۔ اب ویسے تو یہ مہاجر کمیونٹی پاکستان میں تعداد میں کافی کم تھی اور نئی تھی، لیکن ان لوگوں کا جو لٹریسی ریٹ تھا، ان کی جو قابلیت تھی یا پھر ان لوگوں کی جو ٹریننگ تھی یا باقی بڑے بڑے آفیسز اور عہدوں پر کام کرنے کا جو ایکسپیرینس تھا، وہ سندھ کی جو باقی کمیونٹیز تھی ان سے کہیں زیادہ تھا۔ زیادہ قابل اور پڑھا لکھا ہونے کا ہی نتیجہ تھا کہ پاکستان کے شروعاتی دنوں سے ہی جب سسٹم بننا شروع ہوا تو یو پی اور بہار سے جانے والے یہ تمام لوگ پاکستان کے پورے سسٹم پر چھا چکے تھے۔ 1970 اور 75 کے دور تک بھی یہ مہاجر کمیونٹی کہ جس کی آبادی کے حساب سے حصے داری ہر سیکٹر میں 8 سے 10% ہی ہونی چاہیے تھی، 50، 60 ایون 70% تک تھی، جس کا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو سندھی کمیونٹی تھی یا جو باقی بھی گروپس رہے ہوں گے وہ ان سے کافی پیچھے تھے۔ اب ویسے تو مہاجر کمیونٹی کی اس حد سے زیادہ ترقی کا راز ان کا لٹریسی ریٹ ہی تھا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے جانا کہ 1947 میں جب یہ انڈیا سے آئے تھے تو ان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 71% کے قریب ہوا کرتی تھی، جبکہ ان لوگوں کے مقابلے میں سندھی کمیونٹی میں صرف 8 سے 10% کے قریب ہی لوگ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے۔ مگر ظاہر ہے سسٹم کے اندر اپنی اتنی کم حصے داری دیکھ کر وقت کے ساتھ اب سندھی کمیونٹی کے اندر وہ تمام چیزیں جنم لے چکی تھیں کہ جو کسی بھی کمیونٹی میں ایسا ہونے پر جنم لیتی ہیں۔ سندھی کمیونٹی میں اب نئے نئے لیڈرز نے جنم لینا شروع کیا، جن کا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ پنجابی اور مہاجر کمیونٹی نے مل کر سندھی کمیونٹی کو دبانے کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی پولیٹکس میں ذوالفقار علی بھٹو کی انٹری ہوتی ہے اور ان کے گدی پر بیٹھتے ہی سندھ کے علاقے میں کچھ ایسی پالیسیز لائی جاتی ہیں، کچھ ایسا کوٹا سسٹم لایا جاتا ہے کہ جس سے اب پرانی تصویر بڑی تیزی کے ساتھ بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ مہاجر کمیونٹی ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ جان
जानबूझ कर इस तरीके की पॉलिसीज लाई जा रही हैं कि जिनके जरिए से सिंधी कम्युनिटी को जबरदस्ती सिस्टम में घुसेड़ा जा रहा है और मुहाजिर कम्युनिटी को निकाला जा रहा है। अब बड़ी तेजी के साथ सिस्टम में सिंधी कम्युनिटी के लोगों का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि मुहाजिर कम्युनिटी के लोगों का नंबर घटना शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाकर गद्दी पर बैठने वाले अगले लीडर मतलब कि ज़ियाउल हक भी इस पॉलिसी को ऐसे ही जारी रखते हैं। इसी दौर में ही पश्तून और पंजाबी कम्युनिटी से भी बड़ी तादाद में लोग अलग अलग इलाकों से कराची पहुंचने लगते हैं, जिसकी वजह से कराची में अलग अलग कम्युनिटीज की आबादी का जो गणित था वो पूरी तरीके से बदलने लगता है। खास तौर से मुहाजिर कम्युनिटी सतर्क हो जाती है। उनको लगने लगता है कि हुकूमत के लोग जानबूझकर उनको यहाँ पर कम नंबर में करना चाहते हैं, उनके राइट्स को दबा रहे हैं और लगातार उनके साथ भेदभाव हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जगह जगह पर उनको एक अलग नजर से देखा जाता है, मतलब उनको एक पाकिस्तानी की बजाय हिंदुस्तानी के तौर पर देखा जाता है। तो साथियों, यही वो सारी चीजें थी, यही वो सारे चैलेंजेस थे कि जिन्होंने उस दौर में मुहाजिर कम्युनिटी के अंदर एक चिंगारी को शुरू किया। और इसी चिंगारी से आगे चलकर पैदा होता है वो इंसान कि जिसको अल्ताफ हुसैन कहा जाता है। अल्ताफ हुसैन की पैदाइश के बारे में बात की जाए तो वो 1953 में कराची शहर के अंदर हुई थी। उनकी जो फैमिली थी वो इंडिया से पाकिस्तान गई थी और उनके जो ग्रैंड फादर थे वो दरअसल आगरा में ग्रैंड मुफ्ती हुआ करते थे। अल्ताफ हुसैन के बारे में माना जाता है कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे, मतलब पाकिस्तान से उनको बहुत ज्यादा प्यार था और वो पाकिस्तान की आर्मी को भी ज्वाइन करना चाहते थे। मगर जब उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया तो शुरुआती सफर में ही उनको ये महसूस हुआ कि उनकी अपनी जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि मुहाजिर होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है और लोग उनको अलग नजर से देखते हैं। इवन उनके खुद के मुताबिक कुछ लोगों ने तो उनसे ये तक कह डाला था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब आप आर्मी के फील्ड में क्या कर रहे हैं, आप तो हिंदुस्तानी हैं। नतीजा ये हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने अब आर्मी ज्वाइन करने का जो फैसला था वो बदल दिया और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ रुख किया। यहाँ पहुंचकर भी अल्ताफ हुसैन की ये परेशानियां जारी रहती हैं। उनको लगता है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में जो उनका एडमिशन डिनाई किया गया है उसके पीछे भी दरअसल वजह उनकी पहचान ही है, मतलब उनके साथ भेदभाव हुआ है। कुछ वक्त के बाद ही वो मुहाजिर कम्युनिटी के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 1978 के अंदर APMSO नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जाती है, जिसका मतलब था ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट यूनियन, जिसका मकसद यही था कि वो मुहाजिर कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ेगी, मतलब उनके हुकूक के लिए लड़ेगी। और कुछ वक्त के बाद ही फिर 1984 में यही जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी ये एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल जाती है और इसका नाम रखा जाता है MQM, जिसका मतलब था मुहाजिर कौमी मूवमेंट। अब अल्ताफ हुसैन का पॉलिटिकल करियर तो शुरू हो ही चुका था, वो मुहाजिर कम्युनिटी के लीडर बन चुके थे और अब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर कराची की गलियों में सड़क सड़क पर जाकर वो अपनी इस आइडियोलॉजी को फैला भी रहे थे। मगर इन तमाम चीजों में जो असली टर्निंग पॉइंट आया वो साल 1985 में आया कि जब कराची के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक 20 साल की लड़की के जिसका नाम बुशरा जैदी हुआ करता था, उसकी एक बस से कुचलने की वजह से मौत हो गई। अब कहने को तो ये एक मनहूस एक्सीडेंट ही था जो दुनिया के किसी भी इलाके में हो सकता है, मगर इस एक्सीडेंट को जिस चीज ने खतरनाक बनाया वो ये थी कि इस बस को चलाने वाला ड्राइवर पश्तून कम्युनिटी से था, जबकि 20 साल की जिस लड़की की मौत हुई थी वो मुहाजिर कम्युनिटी से थी। एक्सीडेंट होना था कि मानो पूरे कराची का माहौल खराब हो गया, हर तरफ यही इल्जाम लगने लगे कि मुहाजिर लड़की को जानबूझकर कत्ल किया गया है। देखते ही देखते पूरे कराची के अंदर दंगे फैल गए। ये पहला मौका था कि जब कराची के अंदर रहने वाली पूरी मुहाजिर कम्युनिटी को ये एहसास हुआ कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसका बदला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ MQM लेगी। मतलब 1985 में होने वाले इसी एक इवेंट की वजह से अब अल्ताफ हुसैन मुहाजिर कम्युनिटी के इकलौते लीडर बन चुके थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि मुहाजिर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हर इंसान के दिल में बस चुके थे। मुहाजिर कम्युनिटी इस बात पर यकीन कर चुकी थी कि 1947 के बाद पहली बार उनको कोई ऐसा लीडर मिला है कि जो उनके राइट्स की बात कर रहा है और उनके लिए अपनी जान निछावर करने के लिए भी तैयार खड़ा है। इसके बाद ही अब MQM ने बड़ी तेजी के साथ कराची के अंदर फैलना शुरू किया और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू किया। माना जाता है कि MQM के काम करने का जो तरीका था, खास तौर से इनकी जो रैलीज वगैरह हुआ करती थी वो जितनी ऑर्गेनाइज वे में हुआ करती थी उतनी ऑर्गेनाइज वे में 1947 से लेकर अब तक कोई भी पार्टी या कोई भी ग्रुप नहीं कर सका है। हजारों की तादाद में लोग हमेशा इकट्ठा होते मगर हमेशा वेल डिसिप्लिन्ड रहते, मतलब कभी भी कोई भगदड़ वगैरह की खबरें
नहीं आया करती थी। जब कायद मतलब के लीडर स्टेज पर खड़े होकर बोलता तो जितने भी लोग होते थे बड़ी ही खामोशी के साथ उनकी तकरीर को सुना करते थे, और जो तकरीर करने वाला इंसान था वो तकरीर कैसे करता था ये तो हम आप लोगों को स्टार्टिंग में बता ही चुके हैं। 1986 के दौर से ही अब अल्ताफ हुसैन ने खुलेआम ये भी कहना शुरू कर दिया था कि अगर ये लोग तुम्हारे हुकूक नहीं देते हैं, तुम्हारे राइट्स नहीं देते हैं, तो हथियार उठाओ और आगे बढ़कर इन लोगों से अपने राइट्स को और अपने हुकूक को छीन कर हासिल कर लो। इस तरह के बयान से आप क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो वक्त आ चुका था कि जब अल्ताफ हुसैन को किसी का डर नहीं था, और शायद हकीकत भी यही बन चुकी थी, क्योंकि 1990 के बाद के कराची की ही बात कर लें तो माहौल कुछ ऐसा हो चुका था कि एक बंदा चाहे पुलिस से हो, आर्मी से हो या किसी भी बड़े और ताकतवर डिपार्टमेंट से हो, उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो MQM की किसी भी गद्दी पर बैठने वाले इंसान को हाथ लगा सके। MQM का कोई भी मामूली सा बंदा सड़क पर खड़े होकर उसको जलील कर सकता था, मगर वो बेबसी के आलम में कुछ नहीं कर सकता था। साथियों, अब अल्ताफ हुसैन की ये जो MQM थी ये कराची की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फोर्स भी बन चुकी थी, क्योंकि कराची के अंदर कौन कहां पर जीतेगा, कौन सी गद्दी पर बैठेगा, ये सब कुछ अल्ताफ हुसैन के इशारे पर तय होने लगा था। लेकिन हाँ, याद रहे कि ये वो दौर आ चुका था कि जब MQM का नाम क्राइम की दुनिया में भी सामने आने लगा था। कराची के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज की जो पार्टीज थी या गैंग्स थे, उनके साथ अब MQM की झड़पें होने लगी थी। MQM इस दौर तक अपने आप में ही एक अलग फोर्स, एक अलग आर्मी बन चुकी थी जो कराची पर राज कर रही थी। उसके राजा अल्ताफ हुसैन जब भी चाहते अपने एक इशारे पर कराची को बंद करते और जब भी चाहते कराची को खोल दिया करते थे, जबकि हुकूमत और पाकिस्तान का पूरा सिस्टम सिर्फ एक इंसान मतलब अल्ताफ हुसैन के सामने बेबस नजर आता। 1986 और 87 के दौर में ही अल्ताफ हुसैन ने फिर गवर्नमेंट के सामने अपनी कौम से रिलेटेड कुछ डिमांड्स भी रखी थी। पहली डिमांड तो यही थी कि बिहारी ग्रुप के जो MQM से एक बड़ी तादाद में जुड़ा हुआ था उनको सिटीजनशिप दी जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि कराची के अंदर सिर्फ मुहाजिर कम्युनिटी और जो सिंधी कम्युनिटी है उसको ही वोट करने का राइट होना चाहिए, बाकी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से आने वाले जो अलग अलग लोग हैं मतलब कि पंजाबी, पश्तून या फिर बलूची वगैरह, इन सबको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। साथ ही एक डिमांड ये भी थी कि ये जो अफगान यानी ये जो पश्तून हैं इनके कराची में आकर प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसी स्पीड से हमारे इलाके में आकर जमीनें वगैरह खरीदते रहेंगे तो हमारी कराची की आबादी का जो गणित है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और हम अपने ही शहर में पराये हो जाएंगे। अब एक तरफ तो ये सब कुछ चल ही रहा था, मगर दूसरी तरफ कराची की सड़कों पर पॉलिटिकल वायलेंस भी नहीं रुक रहा था। हद से ज्यादा परेशान होकर अब पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी भी MQM को अपने निशाने पर ले ही चुकी थी। MQM के बंदों को जगह जगह से उठाया जा रहा था, इनके ऊपर लगातार FIR हो रही थी और तो और इनके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लग रहे थे कि ये लोग टारगेट किलिंग कर रहे हैं, इनको रिश्वत दिए बगैर कराची के अंदर कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, ये लोग लोगों को किडनैप करते हैं और फिर उनसे भत्ता वसूलते हैं। इसके अलावा भी न जाने कौन कौन से इल्जाम इन लोगों के ऊपर लग रहे थे। खुद अल्ताफ हुसैन के ऊपर भी अब दर्जनों FIR दर्ज हो चुकी थी और उनको पूरा यकीन हो चुका था कि बहुत जल्द ही शायद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए 1991 में अल्ताफ हुसैन तीसरी बार लंदन गए और ऐसा लंदन गए कि दोबारा कभी वापस लौटकर ही नहीं आए। 1992 में ही आर्मी की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और MQM का सफाया करने की शुरुआत की गई। MQM के बंदों को ढूंढा जाता और उनको चुन चुन कर कत्ल किया जाता। लगभग अगले 30 महीने तक आर्मी तैनात रही और हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी हुकूमत MQM को खत्म नहीं कर सकी। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन ने भी लंदन पहुंचते ही MQM की कमान वहीं से संभालनी शुरू कर दी थी। इधर आर्मी की तरफ से अब MQM और अल्ताफ हुसैन के ऊपर ये इल्जाम लगाए जाने लगे कि दरअसल ये इंडिया के एजेंट्स हैं और इंडिया के लिए काम करते हैं। कुछ मौकों पर यह दावा किया गया कि दरअसल ये अपनी कम्युनिटी के राइट्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये तो कराची को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की आवाम को ये बताया जा रहा था कि अल्ताफ हुसैन कोई नेता, कोई गैंगस्टर या कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि देश के गद्दार हैं। 1992 में आर्मी की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन का असर अब जब धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, वैसे ही ऐसे बहुत सारे लोग कि जो अल्ताफ हुसैन या उनके खेमे के गद्दार हुआ करते थे, मतलब वो सारे लोग कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में अल्ताफ हुसैन से गद्दारी की या उनको छोड़ दिया था या दूसरे खेमे को ज्वाइन कर लिया था, उन सब का मर्डर होने लगा। मतलब कराची की सड़कों पर हिंसा दोबारा से वापस आ चुकी थी। उसी दौर में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की गद्दी पर बेनजीर भुट्टो बैठी और उन्होंने 1995 में एक बार फिर से बड़े लेवल पर ऑपरेशन चलाने का ऑर्डर जारी किया। इस ऑपरेशन के तहत एक बार फिर से MQM के बंदों को चुन चुन कर कत्ल किया जाने लगा। हुकूमत ने पॉलिसी ही यही बना ली थी कि जिसको जहां
जहाँ भी पकड़ा जाता उसको वैसे ही कत्ल कर दिया जाता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1995 में कराची के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों की लाशें गिरा दी जाती हैं। याद रहे कि ये वही दौर था कि जब एसएसपी चौधरी असलम जैसे लोग इस तरह के ऑपरेशंस में एक्टिव हो चुके थे। एसएसपी चौधरी असलम और एमक्यूएम की राइवलरी भी एक लंबे वक्त तक चली और चौधरी असलम के ऊपर एमक्यूएम की तरफ से हमेशा ये इल्जाम लगाए जाते रहे कि ये स्टेट का एक मोहरा है और ये हमेशा फर्जी इनकाउंटर करते हैं। कुछ वक्त के बाद जब पाकिस्तान की मेन गद्दी पर परवेज मुशर्रफ बैठते हैं तो इस एमक्यूएम को राहत की सांस मिलती है। बल्कि इस एमक्यूएम ने तो परवेज मुशर्रफ को सपोर्ट किया था। उसकी मेन वजह यही थी कि खुद परवेज मुशर्रफ भी दरअसल मुहाजिर कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे, मतलब जो उनकी रूट थी वो हिंदुस्तान से ही थी। तो इसीलिए एमक्यूएम को एक बार फिर से कराची के अंदर अच्छी तरह से पैर पसारने का मौका भी मिला। मगर जैसे ही परवेज मुशर्रफ गए और पीपल्स पार्टी की वापसी हुई, उसने एक बार फिर से एमक्यूएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इसी दौर में ही पीपल्स पार्टी ने लियारी के रहमान डकैत जैसे लोगों को सपोर्ट करने में सारी हदें पार कर दी, ताकि वो न सिर्फ लियारी के उस वोट बैंक को उनकी पार्टी को वापस दिलाएं कि जो उनके हाथों से छिन चुका है, बल्कि एमक्यूएम जैसी उस पार्टी से निपटने में भी मदद करें कि जिनसे वो लंबे वक्त की कोशिशों के बावजूद भी नहीं निपट सके थे। मतलब रहमान डकैत और उजैर बलोच जैसे लोगों के जरिए से एमक्यूएम को बैलेंस में रखने की कोशिश की जा रही थी। 2012 के दौर से एक बार फिर से नवाज शरीफ की हुकूमत कराची के अंदर एमक्यूएम के खिलाफ बड़े लेवल पर ऑपरेशन चलाना शुरू कर देती है और इस बार ये एमक्यूएम का आखिरी दौर साबित होता है। वो अल्ताफ हुसैन के जिनके कभी एक इशारे पर कराची जैसा बड़ा शहर पूरी तरीके से जाम हो जाया करता था, अब उनके हाथों से भी पावर और असर रेत की तरह बड़ी तेजी के साथ निकलना शुरू हो जाता है। और इस चीज में आखिरी कील साबित होते हैं अल्ताफ हुसैन की तरफ से दिए गए अपने ही कुछ बयान जो उन्होंने 2015 और 16 के आसपास में दिए थे। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को कैंसर बताया, बल्कि 1947 में होने वाले इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे को भी सबसे बड़ी गलती करार दिया। पाकिस्तान के अंदर एमक्यूएम के खिलाफ जो कार्रवाइयां पहले से चल रही थीं, उनको अब इस बहाने से और भी ज्यादा तेज कर दिया गया। उनका जो ऑफिस था या हेडक्वार्टर था उस सब को बंद कर दिया गया, पार्टी को सील कर दिया गया और अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाने पर भी बैन लगा दिया गया। मतलब अब अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की टीवी पर भी नहीं दिखाया जा सकता था। इस तरह से कराची के सबसे ताकतवर नेता अल्ताफ हुसैन और उनकी पार्टी एमक्यूएम की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।